Welcome to Trade for Well Trading Academy. Today we will discuss about one of the wonderful strategy, that is Bank Nifty 1 minute advance strategy. By using that, you can easily predict the market, key where to add your positions, where to exit, where to enter, and in that also, by using option chain analysis, you can enhance your trading journey to the next level by using that indicator. Okay. So this is the Trade for Well ka advanced indicator that is developed for my option batch students, especially for the option batch students. This is very simple tool. First of all, this tool you can apply in all the sectors. You can apply in index, you can apply in stocks, forex, commodity, any sector के लिए आप apply कर सकते हो. Only thing is कि you have to decide the time frame, because time frame is one of the important thing. And how to apply this tool, first of all we can discuss the strategy and entire thing, and then we can proceed further. First of all, we can discuss about the time frame. Which time frame you have to use. Each and everything I will discuss here, so don't worry about that. First one is, if you are using the Nifty and Bank Nifty, Bank Nifty कर रहे हो या Nifty कर रहे हो या Sensex कर रहे हो, कोई भी. Sensex के लिए you have to purchase a separate data, because otherwise trading view is a lagging by 10 to 15 minutes. Then you can use 3 minute. And once you are a pro, then and then only you can use the 1 minute. 3 minutes is the best time frame to trade. If you are doing the stocks, then 5 minute and then 3 minute. Best is a 5 minute, because these are the intraday strategies. So intraday के लिए हम लोग discuss करें. This specially 1 minute strategy indicator is basically for the intraday purpose. If you are doing the forex and crypto, then at that time you can use 15 minutes and then lower time frame में 5 minutes. 15 minutes is the best suitable. So जो best है उसको मैंने टिक मार्क किया है. So forex and crypto में सब आ गया. If you do the commodities also, then also same. Indian commodities या forex commodities करो तो these are the same. So Nifty, Bank Nifty, Sensex, Nifty and Bank Nifty you can use the 3 minute or 1 minute. If you are doing the stocks, then use the 5 minutes or either 3 minutes. If you are doing the forex, crypto or commodities, you can always apply the time frame. 15 minutes is the best time frame for the commodities and forex. थोड़े और एडवांस हो, if you know the basic price action, then 5 minutes. Otherwise 15 minutes is the best. ठीक है, बिकॉज 5 मिनट 3 मिनट कह के जो 1 मिनट भी क्रिप्टो करते कैसे करते हैं, रियली डोंट नो. वहां पे फिर बहुत बार आपका स्टॉप लॉस हंटिंग होगा. If the time frame is clear, then just type clear in the chat box, and this is only and only for the intraday purpose, no positional point of view. ठीक है, एंड वन बाय वन हम लोग देखेंगे इसमें कैसे करना. इफ दिस इज क्लियर, जस्ट टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स. क्लियर 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 क्लियर. गुड. चलो, now we can focus on, first of all we can start the trade with Bank Nifty especially, because this is a Bank Nifty. अब Bank Nifty में करोगे तो एक्यूरेसी बहुत अच्छी है. स्पेशली WT गैन के लिए भी सेम है बैंक निफ्टी, एंड दैट इज ऑल्सो ऑन द 3 मिनट टाइम फ्रेम. अगर आप 1 मिनट करते तो 1 मिनट भी चलेगा, बट बेसिकली स्टार्ट विद द 3 मिनट. व्हाट इज दैट प्रोसेस? यहाँ पे वी हैव वन जोन. लेट अस से मुझे एक ऐसा जोन मेरे पास रहेगा. पहले कंसेप्ट बता रहा हूं.
In that zone, we have to ignore the first candle. This is my first basic funda, whether you are doing any time frame. Why ignore the first candle? Because volatility is at the peak level. इस 3 मिनट कैंडल थे 9:15 to 9:18 का फर्स्ट कैंडल वी टू इग्नोर. वो ग्रीन हो या रेड हो आपसे कुछ फर्क नहीं पड़ता. लेटेस्ट से मैंने बताया कि वो रेड बनाया फर्स्ट कैंडल. ठीक है. वी टू इग्नोर द फर्स्ट कैंडल. जो भी कुछ फर्स्ट कैंडल होगा यू टू इग्नोर. आइदर 1 मिनट कर दो, 1 मिनट का कैंडल इग्नोर करो. इफ यू आर डूइंग 5 मिनट्स देन 5 मिनट्स का फर्स्ट कैंडल इग्नोर करो. 15 मिनट 15 मिनट्स का फर्स्ट कैंडल इग्नोर करो. क्यों? क्योंकि फर्स्ट कैंडल में बहुत सारा वोलेटिल. पहले जन ने जिन्होंने बाय किया वो सेल करेंगे, नए सेलर्स एक्टिव होंगे, नए बायर्स. मार्केट को कुछ नहीं पता रहता. दैट्स व्हाई. आफ्टर दैट आफ्टर दैट एनी ग्रीन कैंडल बाय के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई मीन एक्सप्लेनिंग द बाय का क्राइटेरिया. एनी ग्रीन कैंडल, कोई भी ग्रीन कैंडल, एक ऐसा ग्रीन कैंडल जो मार्केट होने के बाद ऐसा ग्रीन कैंडल जो क्लियर कट ये जोन के ऊपर क्लोज हो जाए. ये जोन के ऊपर मार्केट बुलिश होता है एंड ये जोन के नीचे मार्केट बेरिश होता है. ऐसे कुछ नहीं है. मतलब नीचे से हम लोग बाय भी कर सकते हैं, वो कैसे करना वो भी हम देखेंगे. ठीक है. बट रादर देन नीचे से बाय करने से अच्छा टॉप से सेल करना मैं ज्यादा पसंद करता हूं. मैं अगेन बोल रहा हूं, इफ यू आर अ, ये मेरा कैटेगरी में भी रॉन्ग हो गया था. ऐसे मैं पहले बायर था, सेलर बहुत कम बना मैं कोविड के बाद. मतलब 2010 to 20 आई एम ऑलवेज बायर. मैं मार्केट को ऑलवेज बुलिश साइड ही देखता था. मुझे ऐसा पुट वगैरह शॉर्ट करना पता था बट मैं पसंद नहीं करता था क्योंकि परवरिश ही ट्रेनिंग ही वैसे हो गया था कि माइंड एक्सेप्ट ही नहीं करता था. कोविड के बाद वो एक्सेप्टेंस बढ़ गया. तो मैं हमेशा जो न्यू ट्रेडर्स है, माइंड को साइकोलॉजी को डेवलप करना है तो यू शुड बी ऑलवेज अ सेलर साइड. आप सेलर साइड रहो. मैं ऑप्शन सेलर नहीं बोल रहा हूं. सेलर मतलब शॉर्ट साइड बैठो. शॉर्ट साइड बैठो मतलब पुट साइड आप ज्यादा पैसा कमा सकते हो कंपेयर टू कॉल साइड. आज का वेबिनार आपको समझे ना समझे, कुछ नहीं समझा तो भी चलेगा. ये एक समझ में आना चाहिए कि आप रादर देन कॉल, आपका जो भी कुछ एनालिसिस होता है तो पुट साइड में बेझिझक होकर ट्रेड कीजिए. 100 ट्रेड लीजिए पुट साइड में. लेटेस्ट है 70 में भी स्टॉप लॉस हिट होता है. ओनली 30 का एक्यूरेसी. बट बड़े टारगेट्स अगर लेते हो देन ऑल्सो यू आर इन प्रॉफिट. क्योंकि मार्केट जब भी गिरता है तभी किसी बाप का भी नहीं सुनता. क्लियर है. लेकिन बढ़ने के लिए ना उसकी जान निकल जाती. देखेंगे हम लोग. गिरने के लिए किसी का नहीं सुनता, फटक से आ जाएगा. और बढ़ने के लिए जान निकल जाएगी. तो कोई भी ग्रीन कैंडल अगर क्लोज होता है तो यहां पे मेरी एंट्री होगी एंड ये स्टॉप लॉस. ये कैंडल का लो मतलब स्टॉप लॉस. इफ यूर 1 मिनट अगर जाते हो, 3 मिनट में ये स्टॉप. अगर 1 मिनट जाते हो तो कोई तो रेड कैंडल यहां पे क्लोज होना चाहिए ये जोन के नीचे, तभी हम एग्जिट करेंगे. अदरवाइज मत एग्जिट करना. अदरवाइज वही कैंडल का स्टॉप लॉस चले. बट 3 मिनट में ये रेड कैंडल क्लोज होने तक वेट करेंगे तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस होगा. अगर 1 मिनट करते हो तो मैंने बोला तो रेड कैंडल क्लोज होगा तभी स्टॉप लॉस लो. या नहीं समझा तो 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दो. तो 1 मिनट में आइदर 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है 30 पॉइंट का टारगेट. इतना तो बेसिक रहता है. 3 मिनट में आपको बड़े टारगेट भी मिल सकते हैं. यहाँ पे एंट्री एंट्री के लिए आपको क्या करना है, ऑलवेज सिलेक्ट द सीई ऑप्शन. कॉल ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे हम. कॉल ऑप्शन कौन सा लेना है? वी हैव टू ऑलवेज सिलेक्ट एट द मनी या इन द मनी. आई प्रीफर इन द मनी. कभी कभी आपको लगेगा मंथ के स्टार्ट में इन द मनी बहुत महंगा है तो एट द मनी ले लो. या थोड़ा सा एक दो स्ट्रक्चर आउट ऑफ द मनी. बहुत बड़ा आउट ऑफ द मनी मत जाओ, कुछ मिलेगा नहीं. फिर अपर साइड में मैंने 3-4 टारगेट दिए रहते हैं. आप टारगेट बेस करो या 3 मिनट में पहला टारगेट आपका 40 से 50 पॉइंट रहेगा या 70 पॉइंट तक भी जा सकते हो. 1 मिनट में पहला टारगेट आपका 30 पॉइंट्स रहेगा. सेम एज सेलिंग साइड में. सेल साइड अगर मुझे करना है तो क्या करना है, पहला कैंडल को मुझे इग्नोर करना है. फिर सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी कैंडल ये जोन के नीचे रेड कैंडल अगर क्लोज हो जाए इसके नीचे मैं शॉर्ट करूंगा. स्टॉप लॉस ये कैंडल का हाई लगाऊंगा और नीचे मेरा टारगेट है 50 70 100 200 पॉइंट जो लेना है वो ट्रेलिंग के साथ भी आप कर सकते हो. लेकिन अगर 1 मिनट करो तो ये स्टॉप लॉस नहीं लोगे. 1 मिनट में क्या करोगे, ये जोन के ऊपर अगर कोई ग्रीन कैंडल क्लोज होता है तो ही मैं एग्जिट करूंगा, अदरवाइज नहीं. सो दिस इज द बाय एंड सेल का. तो मैं यही बोल रहा कि आप शॉर्ट साइड रहोगे ना तो ज्यादा पैसा है कंपेयर टू लॉन्ग साइड. सो दिस इज, ये मेरा कहना था. ठीक है. इसको पहले भी मैं प्रैक्टिकल बताता हूं कि क्या होता है एग्जैक्टली. सो दिस इज यस्टरडे फ्राइडे का और ईच एंड एवरी डे का हम लोग करेंगे. फिर ओआई डेटा कब यूज करना है कब करना है वो देखेंगे. दिन का पहला ट्रेड आपको जब भी करना होता है मतलब टिल 9:30 तक अगर आप ट्रेड कर रहे हो 9:30 तक
तो तभी ओआर डेटा नहीं देखना होता। टिल 9:30 तक ओआर डेटा का कुछ रोल नहीं है। आफ्टर 9:30 अगर आप ट्रेड कर रहे हो, कोई यहां पे ट्रेड कर रहा है, कोई यहां पे ट्रेड कर रहा है, तो इसको ओआई के साथ कंबाइन करके ट्रेड लोगे ना, तो आपका 90% स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो आपको कंफर्मेशन मिलेगा कि बड़े ट्रेडर के साथ में हो, तो बीच में ऐसे ये विप्सो आएंगे तो भी आप डरोगे नहीं। ठीक है, तो आपको पता है मुझे यहां पे लिया तो मेरा ये टारगेट है। ठीक है, लाइक दैट वन। तो अभी करना कैसे है, तो ये कल का ही एग्जांपल है। कल मैंने कहां पे पुट दिया था, क्या किया था, वो मैं बता देता हूं, ध्यान दो। दिस इज द फर्स्ट कैंडल। फर्स्ट कैंडल को मुझे इग्नोर करना है। देखा आपने, इग्नोर कर लिया फर्स्ट कैंडल को। चाहिए तो मैं रिप्लाई में बताता हूं तो आपको पता चलेगा। ऐसे कुछ तो रहेगा, या ऐसे कुछ तो। इसमें आप चाहिए तो फिर क्या करो, एक्सटेंड करंट डेज टू राइट, ये राइट में कर लो, मतलब मार्केट चालू है ना ऐसे, तो इसको राइट में कर दो ऐसे। ओके कर दो, देखो ये राइट में हो गया। ठीक है, जोन नहीं होगा बट ठीक है, ये लाइंस तो आपके राइट में हो जाएगा, तो आपको पता चल जाता है। तब ये जोन के नीचे मार्केट है, बट आई वॉन्ट अ रेड कैंडल। आई वॉन्ट क्या, रेड कैंडल मुझे होना चाहिए। इज इट रेड कैंडल बना क्या? इज इट माई रेड कैंडल? जोन के नीचे रेड कैंडल है? इफ यस, टाइप यस, देन दिस इज माई अलर्ट कैंडल। दिस इज माई कॉल्ड एज अलर्ट कैंडल। और ये जोन के जितना नजदीक रहेगा उतने मेरे लिए बेटर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा ये जोन है, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, समझ लो। लेट अस से दिस इज माई जोन। ये पहला रेड कैंडल यहां पे अगर ये ऐसा बनता है, ये रेड कैंडल है, और फिर दूसरा रेड कैंडल अगर ऐसा बनता है यहां पे, तो ये तो बहुत फटके बाहर आ गया। तो ऐसे टाइम में अगेन रीटेस्ट के लिए वेट करो। ये आके यहां पे आके अगर रेड कैंडल देता है, देन आप यहां पे शॉर्ट करोगे। जितना जोन के नजदीक शॉर्ट करोगे उतना आपके लिए बेटर रहता है। जितना जोन के नजदीक रहोगे उतना आपके लिए बेटर रहता है। डन। तो यहां पे क्या, दिस इज माई अलर्ट कैंडल। अगर ये रेड कैंडल बनता है, ये वाला, तो भाई मुझे यहां पे शॉर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो बीट में अगर ये यहां पे रहता तो मैं नहीं करता भाई, टारगेट ही क्या बचा। बट अभी ये ऊपर जाके फिर से है, तो ये मेरा बन सकता है। अभी यहाँ पे स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, कैसे करना है, ये मैं बताता हूं। अभी पहले हम लोग देखेंगे, इसको कंपेयर भी करेंगे। हाउ टू कंपेयर की ऑप्शंस में कहां पे करना। अभी यहाँ पे ऑप्शंस का प्राइस प्राइस चल रहा है 58,091। तो यहाँ पे बेस्ट होगा 58,100 का पुट ऑप्शन ले लो, या 58,200 का पुट ऑप्शन ले लो। दोनों में से कोई भी एक पुट ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो। सबसे बेस्ट रहेगा 58,200 का पुट ऑप्शन। तो आप क्या करोगे, साइमल्टेनियसली, ये ऐसे दिखा, टाइम मिल रहता है आपके पास, तो यहाँ पे डुप्लीकेट में जाओगे, 3 मिनट में बहुत अच्छा टाइम मिलेगा। 1 मिनट में इतना नहीं रहता है। तो ऑप्शन में जाओगे, बैंक निफ्टी में जाओगे। जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि मुझे क्या करना है, 58,200 का पुट ऑप्शन लेना है। अक्टूबर एक्सपायरी में गया एंड 58,200 का पुट ऑप्शन मुझे देखना। तो मैंने पुट ऑप्शन के पास यहाँ पे कर लिया, और यहाँ पे मैंने ये ऐसे कर लिया। अभी मैं बताता हूँ कि कैसे करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अगेन मैं बता रहा हूँ, ये मैं पेड का सिखा रहा हूँ आज फ्री में, क्योंकि ये मुझे पता था। इसके लिए ऑन द स्पॉट बताया कि ऑप्शन बैच के स्टूडेंट्स है 95 स्टूडेंट्स है, हार्डली 10-15 जन बाहर के रह गए, बाकी 90% ऑप्शन बैच के स्टूडेंट्स है। अभी यहाँ पे आप देखोगे ये फोर्थ कैंडल ऐसे बना है, यहाँ पे ऐसे बना है, तो लेटेस्ट से फोर्थ कैंडल मैंने यहाँ पे भी कर लिया। अभी मैंने पुट ऑप्शन लेना है, तो पुट ऑप्शन में आप क्या करोगे, अभी पुट ऑप्शन में यही ट्रेड मैंने दिया था, अभी पुट ऑप्शन में करना तो क्या करूंगा, इधर ये कैंडल के हाई के ऊपर मैं वाई के लिए डालूंगा, ये कैंडल का हाई या ये कैंडल का हाई। मैंने ये कैंडल का ही हाई दिया था 350 के ऊपर, ये बाय दिया था मैंने कल का। आप जाके टेलीग्राम में चेक करो, यू विल गेट द आइडिया। या लेकिन सबसे बेस्ट क्या था, ये कैंडल के हाई के ऊपर भी ले सकते हो, एज पर कैंडल के हिसाब से करना। बट मैंने क्या किया भाई, चलो ना, ये कैंडल का हाई जाएगा, मतलब ये भी जोन के ऊपर जा रहा है, तो मेरे लिए बेटर है। अगर ये जोन के ऊपर जा रहा है तो मेरे टारगेट क्या रहेंगे, वो भी आपको पहले से पता रहता। तो आपकी अभी देखो, फिर स्टॉप लॉस टारगेट का प्रॉब्लम रहता है ना सबको। तो यहाँ पे मेरी एंट्री, मतलब एनालिसिस मुझे करना कहां पे करना है, स्पॉट चार्ट पे करना है। वी हैव टू डू द एनालिसिस ऑन द स्पॉट चार्ट। एंट्री कहां पे लेना है, ऑप्शन चार्ट में, टारगेट वगैरह। फिर एक बार स्पॉट में एनालिसिस किया, स्पॉट का काम खत्म। अभी ये मुझे पता है, ये मेरी एंट्री रहेगी, ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। दिस इज माय स्टॉप लॉस 300 का, मतलब 337 या 340 का मेरा एंट्री है। ये ब्लैक लाइन मतलब मेरा स्टॉप लॉस। ऊपर के टारगेट मेरे फिक्स है, देखो पहले से दिया है 412, 507 एंड 613। इफ दिस इज क्लियर, जस्ट टाइप क्लियर, मतलब अगर ये इसके नीचे अगर आने वाला है,
ये अगर इसके नीचे आता है, ये टारगेट अगर आता है, तो मेरे ऑप्शन में भी ये टारगेट आने चाहिए ऊपर के बाजू में। ये कैसे देखा, ये समझा सबको, तो दिस इज कॉल्ड एज, यहाँ पे स्पॉट पे देखा और यहाँ पे ऑप्शन में। इफ दिस इज क्लियर, जस्ट टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स। इफ एनीवन हैज एनी डाउट्स, देन मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं अनम्यूट का एक ऑप्शन दे दूंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही लोगों को समझ में आते मुझे करना क्या होता है। मैं एनालिसिस करूंगा, एंटायर एनालिसिस ऑन माय स्पॉट चार्ट, देन मैं साइमल्टेनियसली ऑप्शन चार्ट में भी जाऊंगा, एंड ऑप्शन चार्ट में वो कैंडल का हाई जाता है, देन एंड देन ओनली आई विल टेक द एंट्री विद द स्टॉप लॉस, जैसे वहां पे स्पॉट में था। एंड ये यहाँ पे रिपीट मतलब क्या है, फर्स्ट कैंडल वी हैव टू इग्नोर द फर्स्ट कैंडल। मैंने फर्स्ट कैंडल को इग्नोर किया, देन सेकंड कैंडल ग्रीन बना, ग्रीन बना, इसके अंदर कॉल ऑप्शन है नहीं। जोन के ऊपर अगर ग्रीन बनता है तो बुलिश, जोन के नीचे रेड बनता है मतलब बेरिश। तो फर्स्ट कैंडल को इग्नोर किया, सेकंड मेरा कुछ काम का नहीं है, थर्ड मेरे कुछ काम का नहीं है, फोर्थ कैंडल मेरा अलर्ट कैंडल है, दिस इज माय अलर्ट कैंडल। हाउ टू फाइंड अलर्ट कैंडल, आफ्टर इग्नोरिंग द फर्स्ट कैंडल, जोन के ऊपर ग्रीन कैंडल अगर कोई बना तो वो मेरा अलर्ट कैंडल है बुलिश के लिए। जोन के नीचे अगर कोई रेड कैंडल बना तो मेरा बेरिश कैंडल है अलर्ट कैंडल के लिए। इज दैट क्लियर? तो ये मेरा अलर्ट कैंडल था, जिसमें मेरा था 58,200 का, मैंने पुट लिया इन द मनी का, आईटीएम का। उसका चार्ट ओपन किया, ये फोर्थ कैंडल है, तो उसका चार्ट ओपन किया, फोर्थ कैंडल ये है, तो उसका हाई या उसके प्रीवियस कैंडल का हाई के ऊपर मैं बाय का एंट्री करूंगा। जहां पे मेरा बाय का एंट्री रहेगा 337, मतलब 340 का एंट्री डालो, 300 का स्टॉप लॉस, 340 का एंट्री, 300 का स्टॉप लॉस। पहला टारगेट 412 है, इधर आप 400 भी ले सकते हो, 400, 415 पहला। ये सेकंड टारगेट 500 है, 500 या 510, थर्ड टारगेट 600 है, डायरेक्टली 600 या 6, बट इन बिटवीन भी आप करना है तो आप कर सकते हो। इज दैट क्लियर? इफ दिस इज क्लियर, जस्ट टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स, देन मैं रिप्लाई का बटन ऑन करो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो क्वेश्चंस पूछ सकते हो। थर्ड टारगेट 600 है, डायरेक्टली 600 है, ठीक, बट इन बिटवीन सर भी आप मैं करना है तो आप कर सकते हो। इज दैट एक क्लियर? क्वेश्चन। दिस इज, हेलो सर। सर ये बीच वाला जो बॉर्डर है, मतलब जो ब्लू कलर का बॉर्डर, ये इस इंडिकेटर में आ रहा है, पर ज्ञान में तो ये रेड एंड ग्रीन वाला ऑप्शन सर चार्ट ज्ञान में भी है। इंडिकेटर अलग, फिर से बोल दूं अच्छा। मैं, ज्ञान इंडिकेटर इज अ डिफरेंट, 1 मिनट स्ट्रैटेजी इज अ डिफरेंट, ब्रह्मास्त्र ओके। स्ट्रैटेजी इज अ डिफरेंट। ओके सर। ओके। चलो, अभी नो डाउट, तो मैं फिर से ये कर लूं। हम्म, तो अभी क्या कर रहा हूं, अभी मैं स्पॉट पे नहीं देखूंगा, आपको देखना तो आप देख सकते हो, स्पॉट पे देखना तो स्पॉट पे देखो। स्पॉट पे क्या है, मेरा इधर शॉर्ट होगा इसके नीचे। इज इट ट्रिगर? यहाँ पे ट्रिगर हो गया स्पॉट पे। अभी मुझे स्पॉट पे ट्रिगर हो गया, तो मैंने यहाँ पे एडवांस ऑर्डर डाला है। मैंने मार्केट ऑर्डर तो मैं कभी लाइफ में नहीं डालता ना, मैं क्लाइंट्स को बोलता ऑलवेज एडवांस एडवांस लिमिट ऑर्डर डालना था। आपने 340 का एडवांस ऑर्डर डाल के रखा है। जो ट्रिगर हुआ क्या, नहीं हुआ, देखो वहां पे ट्रिगर हुआ, यहाँ पे हुआ क्या। यही कमाल है ऑप्शंस की, अगर आपको ऑप्शंस के लेवल्स पता है ना, ये हम लोग ऑप्शंस में सिखाते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है। तो भी यहाँ पे मैंने था कि प्रीवियस कैंडल का, तो मैं 340 के ऊपर लूंगा मैं। ये ट्रिगर नहीं हुआ, वहां पे ट्रिगर हो गया, बट यहाँ पे हुआ क्या, अभी तक नहीं हुआ है, वेट करो। ट्रिगर हुआ क्या, अभी तक नहीं हुआ है। देखो इसके लिए यहाँ पे ये ट्रिगर हो गया, तो बहुत बार स्पॉट पे ट्रिगर होता है, यहाँ पे नहीं होता है, फिर बाद में होगा ये देखो, ये बाद में होगा। देखो ये यहाँ पे ट्रिगर, तो मेरा एडवांस ऑर्डर यहाँ पे ट्रिगर हो गया, यहाँ पे 340 का जो था वो। अभी मेरा टारगेट क्या है, 400, एंड स्टॉप लॉस क्या है, 300 का 300 ही रहेगा। देखो, देन दिस इज अ ब्लास्ट। इज दैट क्लियर? सो दिस इज अ कल का ट्रेड जो था। फिर बाद में कल क्या, फिर स्काई इज द लिमिट है, देखो डॉट 500 भी गया। इज दैट क्लियर? मैं नहीं बोलूंगा कि आपको 500 बुक करना है, तो पहले टारगेट पे तो निकल सकते हो, तो दिस इज ऑप्शन। तो यहाँ पे क्या किया है, स्ट्रैटेजी ऐसे है कि आपको ऑप्शंस में भी डायरेक्टली टारगेट पता चल जाता है। जो 90% ट्रेडर का पेन पॉइंट होता है कि भाई कहाँ पे बुक करना है, वही नहीं पता चलता मुझे। ठीक है, ये हो गया कल का एग्जाम्पल, ऐसा मैं एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ये कल का हो गया ना, अभी उसके पहले का जाता है। पहले मॉर्निंग का ट्रेड देखेंगे, बाद में हम लोग
रिवर्सल कैसे देखते हैं वो भी हम देखेंगे। तो इसको मैं कैंसिल करता हूँ, यस। इसको मैं कैंसिल करता हूँ, यस। नाखू 24 का हो गया, ठीक है। अभी आते हैं इधर का, 23 का। इस दिन काफी इंपॉर्टेंट था ये दिन, देखते हैं कैसे। 23 तारीख है, ध्यान दो मुझे। पहले बताओ, पहले तो मार्केट गैप ओपन हो, वाओ, ये मैंने भी देखा, वाओ, रेड कैंडल बना, मुझे मुझे इग्नोर करना। फिर ये जोन था, फिर जोन के नीचे क्या बना, रेड कैंडल बना। तो इज इट माई अलर्ट कैंडल बेरिश साइड? यस, ऑफ कोर्स दिस इज माय अलर्ट कैंडल बेरिश साइड। मुझे इसके नीचे शॉर्ट करना है। बट शॉर्ट करते टाइम क्या करना है, पहले आपको पुट ऑप्शन कौन सा लेना है वो देखना है। ये प्राइस चल रहा है 58,200, तो मुझे बताओ कौन सा पुट ऑप्शन लूं, मुझे बताओ, आप टाइप करके बताओ कौन सा पुट ऑप्शन लूं। शाबाश, अभी सबको पता चल गया कौन सा पुट ऑप्शन सबसे बेस्ट रहेगा। 58,300, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे आऊंगा एंड 58,300 का पुट ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। कभी का है, कल परसों का है। 24-23 तारीख, एंड रिप्लाई पे जाऊंगा। हम्म, अभी कैसे खेलना होता है, कैसे करना होता है वो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ध्यान दो। अब ये बैंक निफ्टी, ये पुट बन गया, इसके नीचे जाएगा तो मार्केट स्ट्रॉन्ग से गिरेगा। अभी क्या था, अगर इसके लिए बोला कि प्राइस एक्शन चाहिए, तो अदरवाइज यहाँ पे ये आज स्टॉप लॉस ले लेंगे हम लोग। तो मैं प्राइस एक्शन वगैरह यहाँ पे मैं समझाने बैठा ना, वो प्राइस एक्शन कौन से नंबर पे करना है, क्या करना है, यहाँ पे क्यों करना है, वो सब हम लोग देखेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। तो यहाँ पे ये इसके नीचे जा रहा है, मतलब मुझे क्या करना है, इसके हाई के ऊपर एंट्री लेनी है। इसका हाई क्या था, ये हाई के ऊपर मेरी एंट्री बनेगी। हाई कितना था, 393। इसका लो कितना था, 360। बराबर है, 30 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस है। एंड ऊपर टारगेट है 474 तक। दिस इज द वे, ठीक है। मतलब यहाँ पे मुझे एंट्री लेनी है 395। बट एज पर ज्ञान होता ना, ज्ञान यहाँ पे दिख रहा है इसके लिए, ठीक है। जो मेरे ज्ञान के नंबर ऑफ स्टूडेंट है उनको पता है, तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि भाई पहले का भी ये था, तो आप 410 पे कर सकते हो अगर करना है तो, और वही आज का हाई भी था। तो रादर देन दिस आई विल प्लेस द ऑर्डर 410, करना है तो। उस दिन भी मैंने पुट नहीं लिया था, वी आर इन द लाइव। बट यहाँ पे अगर आप करोगे तो क्या होगा, देखो आगे, नेक्स्ट, ये जस्ट गिव द स्पाइक डाउन साइड एंड स्टॉप लॉस इट। यहाँ पे क्या हुआ देखते हैं, यस, this give the entry point, just spike, and this will be the stop loss hit next candle. This is a stop loss hit. I am agree that this is a stop loss. But if you are a option batch student and आपका प्राइस एक्शन स्ट्रॉन्ग है, तो मेरा एंट्री में 410 के ऊपर लेता था। क्यों, काय के लिए, वो ज्ञान नंबर है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्या है वो देखेंगे। बट ठीक है, आई एम अज्यूम टू बी कि यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ। देन व्हाट विल बी योर नेक्स्ट स्टेप। देखो फिर से ग्रीन कैंडल क्लोज हो गया, तो अभी मेरा क्या रहेगा, ये इसके ऊपर एंट्री। ग्रीन कैंडल ये क्लोज है ऑलमोस्ट जोन के ऊपर। कौन सा स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, एक स्टॉप लॉस हिट, डरना नहीं है, एक स्टॉप लॉस हिट हो गया तो नेक्स्ट ट्रेड कौन सा। मतलब 30 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस गया, 1,000 रुपए का मेरा नुकसान हुआ है, वो मुझे नुकसान भर के निकालना है। मतलब अभी 2,000 का तक का या 1,500 तक का प्रॉफिट चाहिए मुझे। मतलब कम से कम 50 पॉइंट तो टारगेट मिलना चाहिए। 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस गया, तो कौन सा स्ट्राइक प्राइस लू बताओ मुझे। 58,300 भी चलेगा या 200 भी चलेगा। 58,200 भी चलेगा या 300 भी चलेगा, ठीक है। दिस इज द वे। जो वहां पे था वो यहाँ पे फोर्थ कैंडल, तो कहाँ पे एंट्री बनेगी मेरी, कहाँ पे एंट्री बनेगी, यहाँ पे मेरी एंट्री बनेगी 372 पे। पहला टारगेट ये है, बट ये छोटा है, तो ये ट्रेलिंग के लिए यूज कर सकते हो। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, ये कैंडल का लो, इधर ये कैंडल का लो। मतलब फिर से अगेन 30 पॉइंट का बोला ना, 30 पॉइंट का जनरली स्टॉप लॉस आता है, 30-40 पॉइंट का, उससे बड़ा नहीं आता। तो अभी इसके बाद
ये पुट है, सॉरी। हाँ, अरे ये कॉल है। बैंक निफ्टी स्पॉट कहाँ पे गया? दिस इज बैंक निफ्टी स्पॉट, तो इसके ऊपर जाएगा तो ये टारगेट है मेरा। देखो अभी ट्रिगर यहाँ पे, तो यहाँ पे भी अभी यहाँ पे कैसे करना है देखो, ये लाइव मार्केट में हमने किया था, ठीक है। इसके ऊपर जाएगा तो मुझे एंट्री लेना है, ये पहले नीचे है बाद में ऊपर गया, स्टॉप लॉस गया नहीं, तो यहाँ पे ट्रिगर हो गया मेरा। अभी गया, अभी मतलब अभी आपको ट्रेल करना है तो अभी ये स्टॉप लॉस हटा के आप कॉस्ट टू कॉस्ट करो या ये कैंडल का लो कर दो 373, एंड फिर आप बड़े टारगेट के लिए 474 या 50 पॉइंट के टारगेट के लिए आप वेट करोगे और वो टारगेट आ गया। इज दैट क्लियर? डॉट टू डॉट टारगेट, एंड वो डॉट टू डॉट ही रहते हैं। अब ये 474 पॉइंट पे क्यों रखा भाई? 470 475 मेरा एक ज्ञान नंबर है इसके लिए। उसके बाद में 570 तक जाएगा, ऊपर जाएगा तो गया तो 570 तक, मुझे नहीं पता कितना जाएगा, नहीं गया, आ गया फिर नीचे, ठीक है। इज दैट क्लियर? आई होप दिस टू एग्जांपल्स आर क्लियर फॉर द बैंक निफ्टी विद ऑप्शंस के साथ लिया। इफ एनीवन हैज एनी डाउट तो सेम आप निफ्टी में कर सकते हो, सेम आप सेंसेक्स में कर सकते हो, बट सेंसेक्स का डेटा डिले आता है, सो फॉर दैट यू हैव टू फॉलो द रूल्स। इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस देन पूछ सकते हो, अदरवाइज आई टेक द टू एग्जांपल्स, आई विल अनम्यूट और फिर आप एट दैट टाइम आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। जोन ड्रॉ कैसे करना होता है, ये टारगेट कैसे सेट होता है, वो ऑप्शन बैच में हम सिखाते हैं। नेक्स्ट, ड्रॉ ये मैन्युअली भी कैसे करना है मैं सिखाता हूँ ऑप्शन बैच में। ये टारगेट कैसे आता है डॉट टू डॉट ये भी सिखाते हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द बैंक निफ्टी। स्पेशली आज हम लोग बैंक निफ्टी देखेंगे, बट पहले मैं स्टॉक्स एंड फॉरेक्स का क्लियर कर दूं, देन अगेन हम लोग बैंक निफ्टी पे आएंगे जहां पे रिवर्सल भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हो। ऊपर से मार्केट नीचे आ रहा है या सेकेंड लेवल पे जा रहा है, तभी ओआई का कैसे यूज करना है, मतलब आफ्टर 930 940 अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो कैसे करना है वो देखेंगे। अभी हम लोग आते हैं स्टॉक्स के ऊपर, स्टॉक्स में कैसे करना है ये देखेंगे। Sir, लेट I अस have से, one small, Sir Kedar here. Hello. बोलो के, हाँ। Sir, I have one question. If I first I took one trade, and if I got a loss, okay, then there could be a chances of second trade will be again I will in a loss, or it will be the win रेयरली trade. दैट प्रोबेबिलिटी इज हार्डली 5% केदार। मतलब अगर आप 100, मतलब ऐसा दिन जिस दिन न्यूज रहेगा या मार्केट में वोलाटिलिटी या मार्केट साइडवेज है, उस टाइम पे ये सिचुएशन आ सकता है। इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको ना प्राइस एक्शन एटलीस्ट पता होना चाहिए, जो हम ब्रह्मास्त्र में सिखाते हैं कि क्या फिल्टर आउट करना है, क्या मेरे साथ में होना चाहिए। वो अगर एक बार आपको पता चले ना, बट तो भी मैं बोल रहा हूँ कि 5% ही प्रोबेबिलिटी उसकी कि दोनों बाजू में स्टॉप लॉस हिट हो जाए, पहला भी स्टॉप लॉस, अगर दोनों बाजू में स्टॉप लॉस हिट हो रहे तो क्लोज द ट्रेड, फिर वो स्ट्रेटेजी पे काम मत कर। ओके, तो उस दिन मतलब ट्रेड ही नहीं करना है, उसके बगैर दो ट्रेड अगर आपके लॉस हो जाते हैं तो। यस यस डेफिनेटली। ओके, थैंक यू सर। चलो अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टॉक्स में। स्टॉक्स में कैसे करना है, आइदर आप इनिशियली 5 मिनट्स यूज कर सकते हैं या 3 मिनट्स यूज कर सकते हो। आज का टॉपिक ये नहीं है कि स्टॉक कैसे सिलेक्ट करना है, ठीक है, दैट इज नॉट द टूडेज टॉपिक्स। ये हम लोगों ने लाइव मार्केट में ही किया था, ठीक है। तो अगर आप 5 मिनट कर दो तो कैसे ट्रेड रहेगा, 3 मिनट में रहेगा तो कैसे रहेगा, मैं पहले 5 मिनट में बता दूं, आपको पता चलेगा कि क्या करना होता है। अभी 5 मिनट में आप देखोगे पहला कैंडल मैंने इग्नोर कर दिया, सेकंड कैंडल कितना बड़ा बना, अगर ऐसा सेकंड कैंडल बहुत बड़ा बना है इग्नोर करो, इधर वेट करो कि ये जोन के आसपास आ जाए या पहले टारगेट के बाद और एक छोटा ग्रीन कैंडल बने, तो ये बना ग्रीन कैंडल, तो मेरे लिए अभी अलर्ट कैंडल ये नहीं होगा। फर्स्ट तो इग्नोर किया, बट दिस इज सच अ बिग ग्रीन बार, तो एट दैट टाइम ये नीचे आके फिर से यहां पे अगर ये ग्रीन कैंडल देता है ऐसे, तो यहाँ पे एंट्री, ये स्टॉप लॉस बंद है, बट यहाँ पे अभी ये अलर्ट कैंडल, तो ये मैंने पकड़ा था कल, और ये एंट्री, ये स्टॉप लॉस, फिर ये पहला टारगेट, ये दूसरा टारगेट, फिर दोनों टारगेट अचीव। बट दोनों टारगेट में भी ये 50 से कितना गया था मालूम है क्या, 130 तक गया था वो ऑप्शन प्राइस। आप जाके टेलीग्राम पे चेक करो, विदाउट हंटिंग द स्टॉप लॉस। यही अगर आप 3 मिनट में कर रहे हो तो भी सेम लॉजिक है। फर्स्ट कैंडल को मैंने इग्नोर करा, सेकंड तो नीचे बना, फिर थर्ड देखो ना बहुत बड़ा बना है, इग्नोर करो।
फिर सेकंड पे कर सकते हो, यहाँ पे एंट्री, ये स्टॉप लॉस। तो अभी कोई बोला ये जोन में नहीं, अरे ये नेक्स्ट बार पे है ना, तो नेक्स्ट अगर मेरा जोन मिस हो गया, नेक्स्ट इसमें अगर ग्रीन कैंडल है, यू कैन टेक द एंट्री, उसके ऊपर भी ग्रीन कैंडल बन रहा है, यू कैन टेक द एंट्री, लाइक दैट वे में यू कैन अगेन अगेन। बट जितना जोन के ऊपर जाएगा उतना रिस्क भी बढ़ जाता है। तो जोन और पहला लेवल, जोन और दूसरा डाउन साइड पहला लेवल, उतना ही कंसिडर करोगे तो आपके लिए बेटर रहता है। तो दिस इज अ स्टॉक्स। सेम एज अगर कल का देखूं, कल यहाँ पे चोला था मेरे रडार में, चोला या ये था नौकरी, नौकरी था ना कल हमने लाइव मार्केट में देखा था, इन्फो एज। और ये Yes, sir. हाँ, कोई अभी ऐसा नहीं बोल सकता अरे ये तो साला हो गया और अभी बता रहा है, नहीं, ये जो हमें मैं स्टॉक्स बता रहा हूँ ना, ये इसका हमने लाइव सेशन लिया था, तो ये स्टूडेंट्स के सामने ये सिलेक्ट करके बताया था। इज इट राइट कि ये हमने स्टॉक्स सिलेक्ट किया था इन द लाइव मार्केट में, Yes, sir. मार्केट Yes, sir. चालू होने से पहले सिलेक्ट किया था, और हमारी एंट्री ये थी यहाँ पे, एज पर प्राइस एक्शन मेरी एंट्री यहाँ पे थी। बट ठीक है, एज पर जोन कहाँ पे होगी, जोन में तो आपको और एडवांस में एंट्री मिलेगी, पहले कैंडल को इग्नोर और सेकेंड कैंडल यहाँ पे एंट्री, और दैट विल बी द जूम, वन वे रैली, वन वे रैली। और वो बाद में कहाँ पे आके रुका, यहाँ पे। तो ये रिवर्सल वाला ट्रेड भी आज हम लोग देखेंगे कि कैसे देखना होता है बाय यूजिंग दिस लेबल। तो दिस इज अ वन वे रैली, ये जोन का अगर आपका ये मैसेज मिस हुआ तो यहाँ पे भी ले सकते, ये थोड़ा रिस्की हो जाएगा इस इधर लेने। तो भी हमने लिया था क्योंकि ये कल का भी हाई ब्रेक हो रहा था, इसके लिए हमने यहाँ पे लिया था। और मैंने बोला था कल, याद है 1420 तक जाने के लिए रेडी है वो, अगर कोई लाइव में रहेगा। उसका कल का हाई कितना था देखो, 1420, एंड नेक्स्ट टारगेट 1433। ठीक है, तो दीज आर द लेवल्स। ठीक है, चलो, तो स्टॉक्स का भी सबको समझ में आ गया कैसे करना। अगर आप स्टॉक्स कर रहे हो तो स्टॉक्स के लिए भी आप ऑप्शंस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेटर से आपने 5 मिनट पकड़ा, आपको 5 मिनट करना, देखो 5 मिनट में बहुत बड़ा कैंडल बना। इसके लिए मैं कभी कभी बोलता अगर आप एक्सपर्ट बन गए हो तो 3 मिनट इज आइडियल टाइम फ्रेम, क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा रहता है ये। तो ये सेकंड कैंडल है, कितना 1381, तो आपको ऑप्शंस लेना है। तो नौकरी के पास जाओ, ऑप्शंस में जाओ, इन्फो एज में जाओ, 28 के तारीख का 1380, तो 1360 का कॉल ऑप्शन आप देख सकते हो इन द मनी वाला। तो 1360 का कॉल ऑप्शन हमने देखा यहाँ पे। तो आपका एंट्री ये कैंडल के हाई के ऊपर था, आपका ये मिस हो गया तो इधर एंट्री था, शायद हमने यहाँ पे एंट्री लिया था, शायद याद नहीं अभी मुझे। और दैट विल बी द ब्लास्ट इन्फो एज। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी आपको टारगेट मिल जाते हैं कि कौन से टारगेट पे आपको बुक करना है और कैसे लेवल्स पे देखना है। क्लियर। वैसे क्यूमिंस का, तो क्यूमिंस का भी आप वैसे ही चार्ट देख सकते हो। अभी आते हैं हम गोल्ड के चार्ट पे। गोल्ड और ये अगर मुझे करना है तो कैसे करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्ड और इसमें अगर आपको करना है तो कैसा करना होता है वो एक बार देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं बिटकॉइन देखता हूँ, बिटकॉइन गोल्ड, उसमें अगर करना है, पहली बात तो वो कहाँ पे करना होता है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में करना होता है। कहाँ पे करना होता है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में। टाइम फ्रेम आपको क्लियर कट पता होना चाहिए। पहला, इसमें दो अलग अलग स्ट्रैटेजीज है, मैं दोनों स्ट्रैटेजीज में आपको सिखाऊंगा। ठीक है, फर्स्ट स्ट्रैटेजी है दैट इज मॉर्निंग में जो जोन बन रहा है उसके हिसाब से ही मैं ट्रेड करूं, वो भी डॉट टू डॉट चलता है। देखो ना, एकदम डॉट टू डॉट गया ऊपर, फिर से इधर ही आया एंड फिर गया। दिस इज अ डिपेंड ऑन द स्मार्ट मनी कंसेप्ट, मतलब ये प्राइस एक्शन का ही पार्ट है। ठीक है, तो जो मॉर्निंग के जोन रहते हैं उसके हिसाब से आप कर सकते हो। तो ये मॉर्निंग का जोन है, 3 बजे कौन उठेगा, अगर आप उठ सकते तो देखो, फिर आपको करना तो उसके। बट यहाँ पे मैंने क्या किया, सेशंस दिए आपको। यहाँ पे सेशंस के हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। पहला होता है एशियन सेशन, फिर दूसरा होता है ऑस्ट्रेलियन सेशन, फिर तीसरा होता है लंदन सेशन। सबसे ज्यादा वॉल्यूम जो रहता है ना, ये 2 सेशंस में रहता है, लंदन एंड न्यूयॉर्क में। तो मैं बोलूंगा कि आप ये 2 सेशन में करो। तो लेटर से लंदन पे मैंने किया, चार्ट पे जो है वही रखो। यहाँ पे भी आपको ऑप्शन दिया है मैंने, किस पे आपको ट्रेड करना है, मैंने चार्ट पे रखा और ओके कर दिया। दिस इज अ लंदन सेशन। तो लंदन सेशन जब भी चालू होगा उसके हिसाब से ये देगा, एंड ये भी बहुत अच्छा चलता है। तो ये लंदन सेशन का कैंडल है, पहला कैंडल दिख रहा है 12:30 का। 12:30 को लंदन सेशन चालू होता है। तो लंदन सेशन चालू होता है, तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि कैंडल इग्नोर करने की जरूरत नहीं। तो जो पहला कैंडल है वही कंसिडर यहाँ पे, क्योंकि मार्केट पहले से चालू हो गया ना, ड्यूरिंग द सेशन है।
तो वहां पे क्या मैं पहला कैंडल इग्नोर करने बोलता हूँ, यहाँ पे नहीं करोगे तो भी चल जाता। तो यहाँ पे पहले कैंडल के नीचे जोन के यहाँ पे बन रहा है, तो यू कैन शॉर्ट हियर ऑल्सो, या वेट फॉर द नेक्स्ट रेड कैंडल, यहाँ पे बन रहा है तो कर सकते हो, बट वो थोड़ा डिले हो जाता है। एंड स्टॉप लॉस क्या रहेगा, वही कैंडल का है, एंड ये पहला टारगेट नहीं, पहले टारगेट पे बुक करना है तो ट्रेल योर स्टॉप लॉस टू सीटीसी एंड वेट फॉर द सेकंड टारगेट। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो लेटेस्ट से मैं मेरे हिसाब से करो, दोनों फैसिलिटी है, इधर पहले कैंडल पे भी कर सकते हो या मेरे रूल के हिसाब से वेट करो। भाई अभी ये दूसरा कैंडल बहुत बड़ा बना है, देखो ना जोन के काफी दूर है, तो तभी मैंने क्या बोला है, स्ट्रैटेजी क्या है कौन बताएगा। ये अगर है तो वेट करो, या आके फिर से जोन के यहाँ पे रेड कैंडल बना है। अभी कोई बोलेगा सर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना है तो मुझे बाय करना है, तो भाई ये डे हाई जाने के बाद बाय करो ना, पहले क्यों कर रहे हो, इधर बाय मत करो, डे हाई जाने के बाद बाय करो, बेसिक प्राइस एक्शन। फिर यहाँ पे परफेक्ट शॉट बन सकता है, देखो ये रेट मतलब छोटा सा गया, और ये 1:2 इजीली देखेगा आपको, इजीली। फिर से ये रिटेस्ट करना है, बार बार रिटेस्ट, तो आपका प्राइस एक्शन अगर स्ट्रांग है ना, देखो ना ये रिजेक्शन कैंडल है डे हाई के यहाँ से, आज का जो डे हाई था तो लंदन सेशन में स्पाइक है, फिर से रेड कैंडल बना, यू कैन शॉर्ट हियर ऑल्सो। तो यहाँ पे ये दो ट्रेड परफेक्ट थे शॉर्ट के लिए, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, इजीली 1:2 1:2 देखे गए। ये लंदन सेशन के हिसाब से यही आपको सेशंस कर रहा है। आप ऑफिस से लेट आते हो, आपको न्यूयॉर्क सेशन में करना है तो न्यूयॉर्क सेशन करो और ओके कर दो। फिर आपको करना है तो आप 5 मिनट भी जा सकते हो, आई विल नॉट एडवाइज कि आपको 5 मिनट करना है तो कर सकते हो। ये पहला कैंडल है, पहला कैंडल को इग्नोर करो, फिर सेकंड कैंडल, इधर ही रेड कैंडल बने, इसके नीचे मुझे शॉर्ट करना है, ये शॉर्ट करो, डे हाई का स्टॉप लॉस लगाओ, और देखो ये फर्स्ट टारगेट अच्छे हो गए। ऑफिस के बाद जब ये आप आते हो शाम के टाइम 6 बजे, 6 बजे से ये चालू होता है, तो यू कैन डू लाइक दैट वे में आप कर सकते हो। तो वहां पे इधर 5 मिनट और 15 मिनट आप यूज कर सकते हो। ये तो था मेरा बिटकॉइन, यही मुझे यहाँ पे क्रूड लगाना, गोल्ड लगाना है, तो लेटेस्ट से गोल्ड, गोल्ड मैंने लगाया, कौन सा सेशन है, न्यूयॉर्क सेशन ही है, ओके कर दिया। 5 मिनट में कहाँ पे ट्रेड लोगे बताओ मुझे, 5 मिनट क्या, अरे यू कैन डू 1 मिनट ऑल्सो, दैट इज नॉट द बिग इशू। 5 मिनट 15 मिनट ओके। तो कहाँ पे ट्रेड होगा, पहला कैंडल को इग्नोर करना है, रेड तो आया नहीं, फिर ये ग्रीन कैंडल है, देखो यहाँ पे एंट्री थी, ये फर्स्ट टारगेट, आपको बुक करना है तो करो, अदरवाइज ट्रेल करो, स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल करो। फिर आया, फिर यहाँ पे ट्रेल करो, ये और कैंडल ऊपर बना तो इसके हाई के ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम है, लग रहा है कि बार बार रिजेक्ट हो रहा है, यहाँ पे कहाँ पे तो एग्जिट कर सकते हो। फिर बाद में आपकी स्ट्रैटेजी 1:2 1:3 इज मोर देन सफिशिएंट। अब ऐसे नहीं कि भाई 1:10 ही लेके छोड़ोगे, तो ट्रेलिंग करना सीखो, ये ट्रेलिंग में अभी तक स्टॉप लॉस हिट हुआ नहीं है। 15 मिनट करोगे तो 15 मिनट में देखो, तो 15 मिनट में बड़े कैंडल बनेंगे, तो यू डिसाइड कि आपको कौन से टाइम फ्रेम में करना है। यही अगर मुझे लंदन सेशन में करना है तो मैंने दोनों ऑप्शन दिया, 5 मिनट और 15 मिनट आपको करना है, तो ये लंदन सेशन का बताओ कहाँ पे शॉर्ट होगा बताओ। ये एक पहला कैंडल है, इग्नोर, सेकंड ये परफेक्ट कैंडल है 5 मिनट में, यहाँ पे ही शॉर्ट, और ये देखो डॉट टारगेट, और वहां से ही रिवर्सल, डब्ल्यूटी ज्ञान के हिसाब से भी वहां पे ही रिवर्सल था। फिर वो क्लियर, इफ दिस इज क्लियर जस्ट टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो आप मुझे पूछ सकते हो। तो मैंने दोनों एग्जांपल बताए, बिटकॉइन के भी, उसमें वहां पे सेशन वाइज आप कर सकते हो, नहीं सेशन वाइज करेंगे तो भी चल जाता है। इसमें फिफ्थ कैंडल में कॉल साइड गए तो स्टॉप लॉस हंट हुए सर। कौन से यहाँ पे, ये फिफ्थ कैंडल में हाँ अभी देखो ना यहाँ पे अगर जाना है ये फिफ्थ कैंडल में, तो मैंने क्या बोला, डे हाई जाने दो ना उसके प्रीवियस वाला, ये इधर इधर ये इसके हाई के ऊपर गया नहीं है सर कैंडल, देखो ना, देखो इधर गया नहीं, ये ग्रीन कैंडल है ना प्रॉपर, इसके हाई के ऊपर मतलब इधर ना। तो आपका प्राइस एक्शन स्ट्रांग है तो मैं क्या बोलता हूँ, भाई ये जाने दो ना, उसके बाद मैं लूंगा, अदरवाइज नहीं लूंगा। वही हुआ है ना, देखो ना वो जोन जब भी ब्रेकआउट किया तो क्या है, और ये फिर से रिटेस्ट करने आया, देखो दैट इज द पावर ऑफ द प्राइस एक्शन, जो हम ब्रह्मास्त्र में भी सिखाते हैं, ऑप्शन बैच में भी सिखाते हैं, ठीक है। सर गया तो इतना सा जाएगा, बट आया तो बड़ा आएगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रूड ऑइल मध्ये दाखवू शकता का, क्रूड ऑइल आणि याच्यामध्ये जैसे यहाँ पे किया वैसे ही करना है आपको, कुछ नहीं, क्रूड ऑयल करना है तो वहां पे सेशन नहीं रहता, आप मॉर्निंग से ही करोगे ना। अगर क्रूड ऑयल फॉरेक्स वाला कर रहे हो तो फॉरेक्स वाला ठीक है, ये क्रूड ऑयल है, ये मेरे प्राइस एक्शन ऑलरेडी है बने हुए। क्रूड ऑयल वगैरह करना है तो क्या करोगे, शाम को 6 बजे के बाद
अच्छे मोमेंट आते हैं, यू कैन डू दैट टाइम ऑल्सो अगर करना है तो। या इवनिंग का ही मैं मतलब थोड़ा ये कर हाँ मुझे इवनिंग का है, तो इवनिंग के लिए रिवर्सल ट्रेड लेने हो जाए, कैसे लेते हैं मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर के बाद। Okay. जस्ट बैंक निफ्टी में बता रहा हूँ तो मैं बताता हूँ कि कैसे करना अगर ऑलरेडी जोन के ऊपर है, क्योंकि आप इंडियन मार्केट करो ना जोन के बहुत ऊपर है, तो कैसे यहाँ पे रिवर्सल लेना है क्या करना है वो एक बार हम देख लेते हैं, वो बैंक निफ्टी में आपको मैं सिखाता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट एनी क्वेश्चन? नथिंग सर, थैंक यू। सर इसमें डिमांड एंड सप्लाई जोन्स ऐड कर सकते हैं सर? कर सकते हैं, ठीक है मैं एक बार देख लेता हूँ। कौन बोल रहा है? वरुण वरुण। वरुण, ओके। ये मेरा डिमांड एंड सप्लाई मैंने किया, मैन्युअली किया, मैन्युअली का है ये। मार्केट काफी अच्छा चलता है वही जोन में, ये आया इधर से जोन के ऊपर, इधर से टक नीचे, इसके नीचे आएगा Yes. तो इधर। If you include that also, that could be fantastic, sir. ओके पकड़, चल नेक्स्ट क्वेश्चन। नो क्वेश्चन। अभी हम आते हैं बैंक निफ्टी के पास। सर हाँ बोलो। हाँ बोलो, आपका शायद अनम्यूट हो गया वापस। सर हाँ बोलो ना। मैं आपके सॉफ्टवेयर पेड ग्रुप में ज्वाइन होना चाहता हूँ सर। हाँ तो व्हाट्सअप कर दो मुझे, 98 ठीक टू है सर, डबल जीरो 490 3 9 पे। ठीक है सर, ठीक है, ओके। ठीक है। मुझे लगा कुछ डाउट करने के लिए क्वेश्चन पूछ रहे हो। ठीक। चलो अभी आते हैं बैंक निफ्टी के पास। ये जो सिखा रहा हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट है। पहला वाला जो था ये बेसिक था, नाउ जो सिखा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट विल बी आपके आई ओपनर हो जाएगी क्या क्या है। ठीक है, अभी हम लोग ऑप्शंस के साथ इसका मर्ज करेंगे। जिन्होंने ऑप्शन पार्ट पहले ही मिस किया है, एक लेक्चर अपना ऑप्शंस का ऑलरेडी हो चुका है, उसमें मैंने सब कुछ बता दिया था कि ऑप्शंस में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बुलिश क्या होता है, बेरिश क्या होता है, कैसे उसको देखना होता है, वो सब कुछ हमने सिखाया था। तो आज वो हमारा ट्रेड नहीं है, बट तो भी मैं बीच बीच में बताता जाऊँ। तो मैं क्या करूंगा, वो डेटा शीट में आऊंगा, यहाँ पे 3 मिनट करूंगा मैं, पहले 24 का कर देता हूँ कल के इसका, और उसको सबमिट कर देता हूँ। 1 मंथ का मैं बैक टेस्ट कर सकता हूँ मेरे ओ डेटा शीट। अभी अभी लेटेस्ट से पहला एक ट्रेड तो आपने यहाँ पे ले लिया 3 मिनट्स के, यहाँ पे एक ट्रेड ले लिया, ये खत्म हो गया। यहाँ पे अभी 9:30 बज के गया है। उसके बाद आपको नेक्स्ट लेवल्स पे ट्रेड करना है, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। तो क्या करोगे, फॉर एग्जाम्पल अभी यहां से तो नेक्स्ट डाउन सेशन जाने के लिए लेटर से आप पहले ही ये कैंडल बना उसके इधर ही अलर्ट हो जाओगे, मतलब इधर ही आपको जाके पहले ओवर डेटा चेक करना है। मैन्युअली कैसे करना है ये तो मैंने पहले ही बताया, और सबसे बेटर तो ये 10-18 को ये क्लोज भी हो गया, बट आप स्टार्ट करोगे 10-15 से ही देखना ना, तो आपको पता चलेगा भाई ये लेवल के नीचे जाने वाला तो मार्केट बुलिश रहेगा कि बेरिश रहेगा, ये मुझे पहले से प्रेडिक्ट होना चाहिए। अभी मैं मैन्युअली एनएससी के वेबसाइट पे जाके नहीं कर सकता, क्योंकि वो डेटा बैकएंड में करने नहीं देता। अभी मैं क्या करूंगा, फिर मैं यहां पे आके ये ऐसे क्लोज हो गया, बराबर है। ये अगर ये ऐसे क्लोज हो गया तो मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्टली ब्लाइंडली पुट नहीं लूंगा, यहाँ पे ऊपर स्टॉप लॉस जाने के चांसेस बड़े रहते हैं। तो मैं क्या देखूंगा कि भाई मेरे साथ बड़े प्लेयर है कि नहीं। अगर ये लेवल के नीचे, ये कभी करना है 9:30 के बाद, अगर कोई लेवल इधर और उसके लेवल के ऊपर अगर आपको ट्रेड करना, तो यहां पे डेटा मेरा स्ट्रॉन्ग बेरिश होना बहुत जरूरी है। अगर होगा तो ही हम ट्रेड लेंगे। अदरवाइज वो एक कैंडल में स्टॉप लॉस भी हिट कर देता है इसके लिए। तो स्टॉप लॉस कैसे लगाना, बेसिकली यही कैंडल का हाई या उसके प्रीवियस कैंडल का हाई इज अ बेस्ट, या सबसे बेस्ट होता है प्रीवियस स्विंग का हाई लगाना स्टॉप लॉस। मतलब यहाँ पे एंट्री ली, ये स्टॉप लॉस, एक्चुअल स्टॉप लॉस, मतलब जहां पे डरना नहीं है भाई, ये एक्चुअल स्टॉप लॉस है मेरा। या ऑप्शंस के चार्ट पे भी जा सकते हो। अभी लेटर से यहाँ पे मैं बताता हूँ कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा, मुझे पहले बाद में डेटा के पास आता हूँ। तो दोनों में साइमल्टेनियसली बताऊंगा कि जिससे आपका कंफ्यूजन काफी रिड्यूस हो जाएगा। यू हैव टू प्ले पैरेलल रोल। कौन सा स्टॉक ऑप्शन वी हैव टू सिलेक्ट, विच स्ट्राइक प्राइस वी हैव टू सिलेक्ट यहाँ पे।
बेस्ट पुट ऑप्शन लेना है, पुट ऑप्शन है बाहर का ना, 57,900 चले गए, सबसे बेस्ट 58,000। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, बैंक निफ्टी करता हूँ, इसमें आता हूँ और क्या करूंगा मैं यहाँ पे आके 58,000 करूंगा। ये कॉल क्यों कर रहा हूँ, सॉरी, पुट ऑप्शन 58,000 का पुट ऑप्शन। ठीक है, कौन से टाइम फ्रेम में, 10-18 को। तो यहाँ पे भी 10-18, ये है 10-18 का कैंडल, रिप्ले किया, स्टार्ट न्यू किया, ये ऐसे डन। दिस इज माय ऑप्शंस, ये ऐसा कुछ तो सिचुएशन है। ठीक है, तो इसको आपको क्लियर कट दिखता है कि कहाँ पे ट्रेड लेना है, बट ये ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है वो डिसाइड करना है ओआ डेटा से, ब्लाइंडली नहीं करना। ये आया तो क्या करूंगा फिर, मैं अभी जाऊंगा इज्जत से ओआ डेटा शीट के पास, 10-15, 10-18 के पहले मेरा डेटा बेरिश होना बहुत जरूरी है। अगर बेरिश है तो ही मैं ट्रेड लूंगा, अदरवाइज नहीं लूंगा। और सिर्फ इनिशियल ट्रेड लेते टाइम ही चेक करना है, बाद में बार बार चेक करने की जरूरत नहीं। 10-18 के टाइम आप मुझे बताओ डेटा बेरिश हुआ है कि नहीं हुआ है, इज इट अ स्ट्रॉन्ग बेरिश, बाद में एक बुलिश भी बना, बट फिर से बेरिश है ना, ओवरऑल ट्रेड बेरिश ही है। तो भाई मेरा ट्रेड बनता है यहाँ पे, ये समझा, स्ट्रॉन्ग बेरिश है, तो दैट्स वाई मेरा ट्रेड यहाँ पे बनेगा। अगर ट्रेड बनेगा मतलब क्या, इसके नीचे जाएगा तो स्पॉट का काम खत्म, स्पॉट पे नहीं जाना अभी मेरा इधर। तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा ये हाई जाएगा तो मैं एंट्री लूंगा, स्टॉप लॉस क्या रहेगा, यही ये कैंडल का लो 300। कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, ये है। सेफर साइड क्या करोगे आप, ये स्टॉप लॉस लगा दोगे 257, 330 और 260 का स्टॉप लॉस, सेफर साइड। बट एक ही लॉट में कर रहे हो तो इधर ठीक है, और बड़े लॉट में कर रहे हो तो थोड़ा और नीचे आएगा तो ऐड करोगे, लाइक दैट। फिर आगे क्या किया, क्या हुआ देखते हैं। ट्रिगर हुआ क्या, यहाँ पे ट्रिगर हुआ, देखो यहाँ पे ट्रिगर हुआ, यहाँ पे स्टॉप लॉस भी गया, तो एक्चुअल स्टॉप लॉस लगाते तो जाएगा ना, मतलब यहाँ पे ट्रेड ले रहे हो ये स्टॉप लॉस, तो इसके लिए मैंने क्या बोला, अगर लाइन के यहाँ पे ट्रेड करो तो स्विंग का स्टॉप लॉस लगाना सीखो। स्विंग का स्टॉप लॉस वो भी ऑप्शन में लगाओगे तो भी चलेगा, ये ऑप्शन में ये है ना, ये ब्रेकआउट क्यों कर, तो ये स्विंग है मेरे लिए, तो वो जाएगा नहीं। ठीक है, स्टॉप लॉस गया नहीं, देखो टारगेट आ गया, दिस इज माय फर्स्ट टारगेट, टारगेट अचीव, टारगेट अचीव। आफ्टर दैट अगर आपको बुक करना है, नहीं करना है, देन ट्रेल योर स्टॉप लॉस, तो यहाँ पे करो, ये कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस 290 का स्टॉप लॉस है अभी, 377 आ गया, मतलब ऊपर साइड मेरे 45 पॉइंट्स मुझे मिले, खत्म। बट अभी इतना पका रहा है तो आप एग्जिट कर जाओगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बहुत पका है इसलिए। फिर नेक्स्ट एंट्री देखो, ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, छोटे स्टॉप लॉस के साथ। बट फिर से नेक्स्ट एंट्री लेना तो मुझे पहले से पता है भाई, ये जब भी इसके हाई के ऊपर जाएगा ये ब्लास्ट हो जाएगा, या फिर से ये जोन के ऊपर निकलेगा ब्लास्ट हो जाएगा। देखो क्या किया फिर उसने, ये देख, समझा, दिस इज अ ब्लास्ट। बट हमने यही मूवमेंट कैप्चर किया था, मैंने यहाँ पे एग्जिट किया था, ये मेरा एग्जिट पॉइंट, बट तो भी आप ले सकते। तो दिस इज अ सेकेंड कंफर्मेशन विद द ओआई डेटा, मतलब ओआई डेटा के साथ ही आप कंफर्मेशन लोगे, अदरवाइज नहीं। देखो ये स्पॉट में ये एक्चुअल स्टॉप लॉस गया ही नहीं है, दिख रहा है आपको, ये स्पॉट में है। देखो ये पहला टारगेट अचीव, ये स्पॉट का कमाल है, ये देखो स्पॉट में गया ही नहीं है स्टॉप लॉस। तो ऑप्शन में कभी कभी हो जाता है ड्यू टू स्पाइक। फिर से अगर अभी आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है, क्या चेक करोगे बताओ मुझे, कितने बजे है, 12:51 को, कितना बजे, 12:51 को। तो यहाँ पे जाओगे पहले 12:51, ये 12:51 है, बेरिश है क्या चेक करो, है क्या चेक करो एक बार, है बेरिश, हाँ भाई डेटा झूठ नहीं बोलता है बेरिश। तो मुझे ट्रेड लेना है 12:51 को, फिर से वही स्ट्राइक प्राइस पे आते हैं। 12:51 कहाँ पे, देखो ये ना, यहाँ पे देखो, ये कैंडल, वही तो मैंने बताया कि मतलब ये डे हाई जाएगा तो ब्लास्ट होगा, तो यही है, इसके ऊपर ये ब्लास्ट हुआ रहेगा, शायद 600 तक गया था शायद, ये देखो गया ना, ये दिखा था मैंने, 600 तक गया था डॉट। समझा ये कैसे ट्रेड करना है, लाइन से कर रहे तो, लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहे तो, मतलब एक लाइन मिस हो गया, दूसरे लाइन पे ट्रेड करना है, तो इस वे से आपको करना है। इसमें और एक मैं बताता हूं, कभी कभी ये मार्केट ऊपर जाके जब ये नीचे आता है, फॉर एग्जाम्पल शायद इस दिन हुआ था, एक मिनट, मैं आता हूं यहाँ पे, देन आपके क्वेश्चन आंसर लूंगा, देन हम लोग देखेंगे आगे। इस दिन ये मार्केट गया ऊपर, और ऊपर से नीचे जब ये आता है
at that time also you can refer your OVA data. For example, ये गया मार्केट इधर और ऊपर से ये रेड कैंडल बनाता है, you can refer check the OVA data at that time. मतलब फॉर एग्जाम्पल कितना है 1024 है, तो आप जाओ वहां पे 1024 के यहाँ पे कभी है, ये पहले दिन का है, ऊपर से नीचे आता है, तभी कौन से दिन का है 23 तारीख का है, तो आप यहाँ पे आ जाओ बैंक निफ्टी में 23 तारीख का यहाँ पे टाइप करो, 1024 में जाओ, ये 1024 में है, तो वहां पे बेरिश रहेगा तो लोगे, है क्या बेरिश, बोलो मुझे, लोगे कि नहीं लोगे, यस और नो में रिप्लाई करो सिर्फ। ये बैंक निफ्टी में यहां से पुट ले रहा था, मैं लूंगा कि नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, छोड़ दो भाई, फिर ये आ गया नीचे, कुछ प्रॉब्लम, फिर से ऊपर से नीचे आ रहा है, तभी कुछ आ रहा है तो देखो आपको, फिर बाद में पता चला भाई ये तो पूरा साइडवेज है, वो जब भी साइडवेज टू होगा, और वैसे भी हम 11 से 12:30 के बीच में ट्रेड नहीं करने का कभी भी, इधर भी ऊपर से नीचे आ रहा है, 11 से 12:30 के बीच में मत करो, 12:30 के बाद देखो ना, ये 12:30 के बाद है, देखो ये 12:30 के बाद दिखा है 12:42, अभी मुझे कहाँ पे देखना है 12:42 के पास देखना है कि डेटा बेरिश हुआ क्या, 12:42, यहाँ पे आऊंगा 12:42 उसी दिन 23 तारीख को 12:42 को, ये 12 है, 12:42 को डेटा बेरिश है क्या चेक करो, 12:42, ये 12:42 है, डेटा क्या है बुलिश है, वेट करो बेरिश का, किसका वेट करना है बेरिश का, 12:42 के यहाँ पे बेरिश कब हुआ देखो, 12:45 एंड 12:48 के पास हुआ, तो इसके बाद 12:48 को लेना है मुझे, देखो यहाँ पे तो 12:51 भी चलेगा, तो यहाँ पे आपका पुट बनता है, और ये डे हाई मतलब स्टॉप लॉस, और फिर ये ब्लास्ट नीचे, तो ओवर डेटा के साथ करोगे ना ट्रेड, जब भी लाइन के साथ करोगे तो यू विल गेट द 90% एक्यूरेसी, ठीक है, तो ये 90% एक्यूरेसी के साथ आपको ट्रेड मिलेगी। नाउ योर डाउट सॉल्विंग सेशन, प्योर लर्निंग हो गया 1 आवर का, नाउ इट्स अ डाउट सॉल्विंग। Can you just show once how to do call sell in this scenario instead of buying? कॉल सेलिंग, वाओ, कॉल सेलिंग इज द बेस्ट सर, यहाँ पे वो तो ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा आपको, लेट अस से इफ यू वांट टू डू हियर, तो आप क्या करोगे, रादर देन पुट कॉल शॉर्ट करके बैठ जाओ, नो प्रॉब्लम, उसमें ज्यादा प्रॉफिट, क्योंकि साइडवेज गया तो भी आप प्रॉफिट में रहने वाले। लेट अस से आई विल चेक शो यू हियर सेम एग्जांपल इन दिस ओनली, यहाँ पे कितना 10:18 को, एट दैट टाइम आपने ओवर डेटा नहीं देखा तो भी कुछ फर्क, देखा तो और अच्छा है, 57,800 या 900 का कॉल ऑप्शन, सेम 57,900 का कॉल ऑप्शन, ये कितना 10:18 को, मतलब 10:18 मतलब ये यहाँ पे कहाँ पे, तो आप शॉर्ट करोगे कितने पे, प्राइस पे 210 पे, किधर गया देखो, ये आपको तो होल्ड करना ना, यहाँ पे शॉर्ट करना है, ये स्टॉप लॉस है, और होल्ड करो 140 तक, 60 पॉइंट यू आर गेटिंग, जितना वो साइडवेज रहेगा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता आपको, यू विल बी टेंशन फ्री ना, एंड एक आउट ऑफ द का एक सेफ्टी साइड मार्जिन रिड्यूस करना है, तो ऑप्शन बाय करके रखो, दैट्स इट, क्लियर। Thank you. Nifty also you can do same scenario, no problem, but rather than you just, if you're a beginner, start with the bank nifty, I know bank nifty volatile, but इससे ट्रेड करोगे तो volatility reduce करने के लिए हेल्प होगा, whereas निफ्टी काफी volatile है nowadays, प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट, और लॉट साइज भी बढ़ गया ना, दैट्स अ बिगर इशू इन निफ्टी। सर आपने बैंक निफ्टी का लाइंस में ट्रेड करना अभी बताया ना, द सेम थिंग हाउ टू डू, बिकॉज वो डेटा नहीं रहता आप क्या बोलते फॉरेक्स में, राइट, सो इन फॉरेक्स एट द लाइंस हाउ डू वी ट्रेड। ये सेम जो वैसे बता, वहां पे ओवर डेटा मत फॉलो करो, यू कैन, मेरा चल रहा है नाउ, माय नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज सेम ओनली, इंडिया में किसी के पास नहीं है, बट आई एम ट्राइंग दैट ऑल्सो, डेल्टा के साथ मेरा कम्युनिकेशन चल रहा है, बिकॉज डेल्टा ओनली प्रोवाइड द डेटा, वो डेटा कितना एक्सपेंसिव होगा क्या अभी तक बात नहीं है, आई एम प्लानिंग कि यहाँ पे बिटकॉइन, गोल्ड और इथेरियम ऐड करूँ ओवर डेटा में, ओके गुड, ठीक है, प्लानिंग, देखो दिस इज माय ड्रीम, मतलब जो क्वेरी आपने पूछो, किसी ने भी पूछा तो
उसके ऊपर मेरा वर्क भी चालू है. दिस इज माय नेक्स्ट प्रोजेक्ट. अभी एक एक प्रोजेक्ट पे काम खत्म कर रहा हूँ. नाउ माय बिगेस्ट प्रोजेक्ट अभी खत्म हुआ जस्ट आज, उसमें भी थोड़े चेंजेस पेंडिंग है, जो ये बता रहा हूँ मैं. ये ब्रह्मास्त्र और एडवांस में बनाया है उसको. जो पहला था उससे और बेटर वे में और एडवांस वे में, और उसको स्टॉक्स करके दे दे उस टाइप से. और फिर ये गोल्ड में भी काम कर सकता है, गोल्ड सिल्वर उसमें भी डाला है. देखो ये गोल्ड का भी है, तो उसमें भी वो एनालिसिस करके देगा. लेट्स सी कैसे देगा, क्या करेगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. मैं पूछ सर सकता हूँ सर? पूछो ना. सुनील बोल रहा हूँ सर। बोलो. कल सर मैंने निफ्टी में एक ट्रेड लिया था 1041 पे। जो हाँ, आपने आज बताया कि जो स्विंग हाई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मेरा स्टॉप लॉस लेके गया। अभी आज स्विंग हाई की वजह लिया होता तो शायद नहीं जाता। ये यहाँ पे जितने लोग हैं सबके लिए बहुत जरूरी है। 1041 पे मैंने लिया था और ओआई शीट में भी स्ट्रॉन्ग बेयरिश था। यहाँ पे, यहाँ पे जी हाँ हाँ, यस। मोस्टली मैं अवॉइड करता यहाँ पे, क्योंकि ये थोड़ा साइडवेज ही दिखा रहा है. साइडवेज हो गया था, ये यस। लिया तो भी ठीक है, बट आपका स्विंग आए मतलब आपका स्टॉप लॉस रहेगा एट दैट टाइम. हाँ, मैंने स्टॉप लॉस थोड़ा कम रखा था तो वो स्टॉप लॉस हिट और करके गया। 1040 को आपको दिख रहा है ना, वे पहले बहुत साइडवेज एक्शन, तो आइदर ये इसके नीचे कैंडल क्लोज होने के बाद लेते तो बेटर रहेगा. मतलब ये इधर बेटर परफेक्ट ट्रेड था या ये ऊपर जाके इधर परफेक्ट ट्रेड था, दोनों में से कोई भी एक. कोई भी। राइट राइट। ओके, थैंक यू। थैंक्स, सर बाय. ये आपका जो ओआई डेटा जो है वो हाँ, ओआई डेटा में टाइमिंग के हिसाब नहीं नहीं, आपका वॉइस चला गया टाइमिंग के हिसाब से. हाँ, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो. 3 मिनट पहले 1 मिनट भी था, बट वो बहुत कम होता था पहले. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीथिंग. हेलो हेलो हाँ बोलो. हाँ बोलो सर. कैन आई स्पीक और एनीबॉडी वांट्स टू? नहीं नहीं नहीं, बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो. सर ये जो आपका ओआई डेटा जो है वो आपका स्टेप बाय स्टेप लाइन आइटम्स आगे बढ़ते रहते हैं क्या टाइम के हिसाब से? या देखो ना, ये एक नहीं, एक फॉर लाइन बढ़ते एग्जांपल मतलब अगर मैं 10 बजे अगर मैं कौन सा डेटा देख अगर मैं 10 बजे के बाद डेटा देखना चालू करता हूँ तो जो लाइन आइटम्स जो है वो आगे ऐसे बढ़ते जाएंगे 3-3 मिनट्स के आगे ऐसे कि ठीक है या भी यस स्ट्रॉन्ग यस बुलिश है या यस बेरिश, यस ऐसे बढ़ते यस जाएंगे बढ़ते जाएगा वो. ओके. यस यस. नेक्स्ट. चलो अभी मैं आता हूँ. हो गया. चलो. Done. अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था, ये जोन ड्रॉ करना कैसे होता है क्या, तो ये हम हमारे ऑप्शन बैच में सिखाते हैं, जो हमारा अभी फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर से चालू होने वाला है. ये जोन ड्रॉ कैसे करना होता है, मैन्युअली कैसे करना, आपको इंडिकेटर नहीं लेना है तो भी मैन्युअली कैसे करना है. यू कैन ड्रॉ दैट जोन आल्सो. उसके लेवल्स एडजस्ट भी कर सकते हो आप, लाइक दैट इज अ फर्स्ट थिंग. फिर सेकंड मुद्दा आता है कि स्टॉक सिलेक्शंस कैसे करना. तो जिनको स्टॉक्स में स्ट्रगल हो रहे हैं ना, तो यू मस्ट लर्न द ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी. क्योंकि ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी एक ऐसा, क्योंकि ये भी स्ट्रगल में कर चुका हूं कि कैसे स्टॉक्स ढूंढूं कि जो मोमेंटम में आएंगे आज या पोजिशनल में आएगा. तो उसके लिए आपको प्राइस एक्शन वाइज एक कंसेप्ट आता है, दैट इज अ ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी. यू मस्ट लर्न दैट. दैट इज योर फर्स्ट बेसिक स्टेप अगर आपको इक्विटी में करना है या स्टॉक ऑप्शंस में करना है तो. एंड देन यू कैन जनरेट इन द ऑप्शन बैच. तो फिर ऑप्शन बैच में बहुत सारा पैरामीटर आता है. फिर ये बैंक निफ्टी निफ्टी 1 मिनट स्ट्रैटेजी सिखाते हैं. फिर आपका रिवर्सल टाइमिंग आता है, रिवर्सल इंट्राडे आता है, रिवर्सल डे कैसे करते हैं. जैसे कल रिवर्सल डे था, ये पहले से प्रेडिक्ट था कि भाई कल मार्केट गिरने वाला है और वहां से रिवर्सल आ सकता है, लाइक दैट वन. तो ये सब रिवर्सल टाइम, रिवर्सल डे, कैसे मून मार्स कंजंक्शन कैसे होता है, कौन से प्लैनेट का इम्पैक्ट कैसे होता है, ये सब आपको ऑप्शन बैच में सिखाया जाता है. वहां पे 2 पोजिशनल के भी सेटअप सिखाया जाता है रादर देन इंट्राडे. दैट इज फर्स्ट वन इज अ वीसीपी सेटअप एंड सेकंड वन इज अ एमएमएस सेटअप. तो ये पूरा जो भी कुछ है, ये ऑप्शन बैच आपका चालू हो रहा है नवंबर से. 18,000 में है.
सो उसका पार्ट पेमेंट आप अभी कर सकते हो, एंड पार्ट पेमेंट जब भी लेक्चर स्टार्ट होगा तभी पार्ट पेमेंट अभी करोगे तो आपको डायरेक्टली ब्रह्मास्त्र का एक्सेस दिया जाता है, तो तब तक आप पूरा रिकॉर्डिंग सुन के बी रेडी रह सकते हो। दैट इज अ ऑप्शन बैच, एंड सिर्फ ब्रह्मास्त्र ज्वाइन करना है तो आपको 8,000 में दिया जाता है, जहाँ पे रिकॉर्डिंग प्लस लाइव सेशंस भी आपके रहते हैं। दिस इज द लास्ट ऑप्शन बैच। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन बैच जनवरी में रहेगा। एट दैट टाइम फीस विल बी 25,000, क्योंकि एट दैट टाइम मैं सोच रहा हूँ कि लोग सोच रहे हैं कि मुझे रिकॉर्डिंग भी चाहिए, तो वो विथ रिकॉर्डिंग के साथ डायरेक्टली तो और एक प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट किया मैंने डायरेक्टली, तो वो प्लेटफॉर्म पे डायरेक्टली रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। बट एट दैट टाइम फीस नॉट विल बी द 18,000, फीस विल बी द 25,000 ओनली। ठीक है, सो दिस इज द लास्ट चांस कि जिनको ज्वाइन करना है वो लोग कर सकते हो। अभी जिनको नहीं करना है, कोर्स नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ ये इंडिकेटर लेना है, तो यू कैन परचेज दिस इंडिकेटर जो 1 मिनट स्ट्रैटेजी का है, जिसका ईयरली चार्ज 4,999। ठीक है, और जिनको ओआ डेटा करना है वो भी कर सकते हो, तो ओआ डेटा का 1 साल का 10,000 है, दोनों मिला के 15,000 होता है। आज के लिए कम्बो ऑफर दे सकते हैं, 10,000 में आपको दोनों मिलेगा, मतलब ये भी मिलेगा 1 ईयर के लिए, 1 ईयर के लिए। बट जनरली एक दिन में, 1-2 दिन में आपकी फीस रिकवर हो सकती है, तो दोज आर इंटरेस्टेड दे कैन जस्ट व्हाट्सअप ऑन माई नंबर। आपको लेना है तो इट्स नॉट द कंपल्सरी क्राइटेरिया कि आपको इंडिकेटर के साथ ही करना है, बट इंडिकेटर में क्या होता है, लेवल्स वाइज आपका प्रेशर कम हो जाता है, तो यू कैन जस्ट जीपे ऑन दिस नंबर। तो 10,000 में आपको 1 ईयर का पूरा सब्सक्रिप्शन इसका भी मिल जाता है, एंड 1 ईयर का ओआ डेटा का भी सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। फिर आपका स्टॉक सिलेक्शन का भी टेंशन नहीं रहता। यहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन के स्टॉक्स रेडीमेड आ जाते हैं कि कौन से स्टॉक्स में मोमेंटम होने वाला है, कौन से स्टॉक्स में मोमेंटम नहीं करना है, ये सब आपको यहाँ पे आ जाता है। कौन से स्टॉक्स में पोजिशनल में मोमेंटम रहेगा। अभी लेटर से मंडे के दिन मुझे कुछ स्टॉक्स देखने हैं, तो मैं आज का ही पोजिशनल में देख लूंगा कि कौन से स्टॉक्स है, तो ये मंडे के लिए मैं ये आज ही एनालिसिस कर दूंगा। इसमें से मैं हैवल्स में ट्रेड नहीं करता, गोदरेज प्रॉपर्टी करता हूँ, एलटी करता हूँ, एक्सेल टेक में नहीं करता हूँ, चोला फाइनेंस मेरे में रहेगा, पेटीएम रहेगा, टीसीएस नहीं करता हूँ, भारतीय एयरटेल करता हूँ, कोटक नहीं करता हूँ, नौकरी। तो ये 5 स्टॉक्स मेरे आज ही रडार में रहेंगे इन एडवांस में, क्योंकि ये पोजिशनल स्टॉक्स में आया ना इसके लिए। तो ये स्टॉक सिलेक्शन आपको यहाँ से मिल जाता है। ठीक है, सो दिस आर द डिफरेंट डिफरेंट पैकेज। जिनको कुछ भी नहीं सीखना है उन लोग सॉफ्टवेयर ग्रुप में आ जाओ, मंथली 3,000 रहता है, उसमें आप कर सकते हो। तो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स जिसमें आपको काम करना है। अगेन ब्रह्मास्त्र का न्यू वर्जन रेडी नहीं है अब तक, तो उसके लिए मुझे मैसेज मत करो ये न्यू वर्जन कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। उस पर अगर काम चालू है, उसमें मतलब अभी कल ही मुझे 2 सजेशंस मिले, तो उसमें मुझे थोड़े और 6-7 पैरामीटर और ऐड करने हैं, तो मे भी कितना टाइम लगे पता नहीं, तो वो ऐड करके जब भी रेडी होगा, तो जो मेरे पहले वाले ब्रह्मास्त्र स्टूडेंट्स हैं उनको 1 मंथ का एक्सेस में इसको दूंगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो उसके बाद भी कुछ सजेशंस रहेंगे, तो सजेशंस आर ऑलवेज मोस्ट वेलकम। या ऑप्शन बैच में आपको ये 1 मंथ के लिए इंडिकेटर मिलता है, नो डाउट। जो मैंने कमिट किया वो सब मिलेगा आपको ऑप्शन बैच में, ट्रायल के लिए देता हूँ। फिर कोई मिलता है ट्रायल के बाद में आपको लगा कि भाई ये यूजफुल है, आपको खरीदना है तो आप खरीद सकते हो, नहीं खरीदना तो मत खरीदो। मैन्युअली कैसे करना है वो तो आपको बताया जाता ही है ना। या now you can ask your questions। अनम्यूट करके पूछ सकते हो, मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है आपको। So there will be no discounts to the people who have already taken a GAN indicator. आप मुझे Uh, व्हाट्सअप कर दो एक बार, ठीक है. 98200200। I have your number. I have your number, या sir. Yeah, thank जस्ट you. मुझे व्हाट्सअप कर दो, ठीक है। True. या नेक्स्ट, एनी क्वेश्चन आपको जो मैंने आज सीखा है उसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क।
या क्षितिज बोलिए. विशाखा आहे मुलाच्या नावाने तर. नहीं, आपका आवाज नहीं आ रहा है. तर विशाखा आहे मुलाच्या नावाने जॉईन झाले. ओके, विशाखा देशमुख आफ्टर अ लॉंग टाइम. हा सर. सर मला टेलिग्रामची पण लिंक द्या. ऍक्च्युली माझं टेलिग्राम प्रॉब्लेम झाला मला त्यामुळे. व्हॉट्सअप करा ना इकडे, या नंबरवर हा, सर. व्हॉट्सअप. नो प्रॉब्लेम. आणि सर दोन्ही साईडला ओपन इंटरेस्ट मध्ये तुम्ही त्या दिवशी निफ्टीचं सांगितलं की दोन्ही साईडला ज्या साईडला Yeah. नेगेटिव्ह असतं तिथे मार्केट जातं, पण दोन्ही साईडला नेगेटिव्ह असेल तर ते साईडवेज दॅट जातं. इज द साइडवेज विथ द वोलॅटिलिटी. ओके सर, थँक्यू सर. तो एट दैट टाइम ट्रेड अवॉइड करने का, दोनों बाजू में वैसे है तो. ओके सर, थँक्यू सर. तर जो डिसिजन घ्यायचा असतो आपल्याला ओवाय वरती, सॉरी आय एम टॉकिंग इन मराठी, पण मला ते स्पष्ट तुमच्याशी हा क्वेश्चन करता येईल. जेव्हा आपण ओवाय डेटा बघतो आणि तिथे समजा तिथे स्ट्रॉंग बेरिश आलं, तर इमिजिएट बेसिसवरती तिथे तो आपल्याला ट्रेड एक्झिक्यूट करायचा असतो की नाही बाबा ठीक आहे वी हॅव टू वेट फॉर दॅट, की त्याच्या 3 मिनिटांनंतर. कारण की तुमचा तर मी जो डेटा बघितला त्याच्यामध्ये मध्येच नंतर बुलिश होतं, नंतर पुन्हा मध्येच स्ट्रॉंग बुलिश होतं, नंतर पुन्हा स्ट्रॉंग बेरिश असं आलेलं होतं त्याच्यामध्ये. या गुड क्वेश्चन. इसका आंसर मैंने लास्ट टाइम ही दिया था. मैंने ऑलरेडी बोला है कि आपका ट्रेड अगर 100% है तो डेटा का वेटेज कितना होता है? ओनली 25%. पहले डेटा देख के ट्रेड नहीं लेना होता है, पहले प्राइस एक्शन देखना होता है, या आपका जो भी कुछ स्ट्रैटेजी है वो देखना होता है. वो स्ट्रैटेजी का कंफर्मेशन होगा कि भाई स्ट्रैटेजी से शॉर्ट है, वो होगा कि नहीं होगा, उसके लिए फिर डेटा में जाना है. ओके. बहुत जन पहले डेटा देखते हैं, स्ट्रॉन्ग बेरिश है, चलो मैं पुट लेता हूं, बैंड बाजा 12 बजेगा. ओके. पहले जो आपका स्ट्रैटेजी है, आपके लेवल्स है, उसके हिसाब से अगर वो आ रहा है, वो होने के बाद मैं कंफर्म करूंगा हाँ डेटा बेरिश है कि बुलिश है, एंड देन आई विल डिसाइड टू टेक अ पुट और नॉट. क्लियर? या टोटली. थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये नाइस क्वेश्चन था इनका. आधे जन को समझा कि डेटा तो बुलिश बेरिश बताते रहेगा, फिर मैं कंफ्यूज होगा, तो इसके लिए तो वो कंफ्यूजन नहीं होना. इसके लिए पहले प्राइस एक्शन या आपका स्ट्रैटेजी देखना है, उसका कंफर्मेशन. हाँ भाई मुझे लगा यहाँ पे पुट लू कि नहीं लू. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे पुट लेना है कि नहीं लेना है, ये जगह पे ये तो लेवल के नीचे आ गया. एट दैट टाइम जैसे किसी का कोई बोले कि निफ्टी का देखो सर, तो ठीक है मैं निफ्टी का देख रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे पुट लेना है कि नहीं लेना है, वो अगर मुझे डिसाइड करना है, ये लेवल के नीचे है 121, तो 121 पे तभी जाके मैं डेटा देखूंगा कल का निफ्टी का 3 मिनट का 121 का. वो अगर बेरिश हुआ 121 मतलब 1321, तो मुझे बताओ लू कि नहीं लू, आप मुझे बताओ. तो उसके पहले वाला भी बेरिश है और वो भी बेरिश है, क्या करूं केदार? अच्छा ले सकते हैं, बट अगेन दैट जो पिंक कलर में जो बेरिश आ रहा है वहां पे हम लोग ट्रेड मतलब मैं बताता हूँ हाँ. अभी मैं बताता हूँ. इसका तो कुछ यूज नहीं होता, ये तो नॉर्मल बायर है. ये 2 बार बेरिश हो गया, फिर ये डेटा का काम खत्म हो गया, फिर बार बार डेटा नहीं देखना है आपको. डेटा का एंट्री के टाइम ही सिर्फ मुझे लेना देना है. मैंने एंट्री ले ली, डेटा का काम खत्म. अभी मेरे पास टारगेट है, यहाँ पे एंट्री है, ये मेरा स्टॉप लॉस है और मेरे नीचे के टारगेट है. दैट्स इट, मेरा डेटा का काम खत्म. फिर बाद में डेटा नहीं देखना है, फिर बाद में आपको जस्ट ट्रेलिंग करते रहना है. फिर बीच में डेटा कभी बुलिश भी होगा, कोई वेरी, वो खत्म डेटा. चलो ठीक. Thank you all of you. Thank you for your wonderful response. If you like this video, just please like and subscribe करना मत भूलना. And if you have more queries, just WhatsApp on this number. Thank you.